as a professional valuer, वैल्यूएशन टू मी इज क्वांटिफिकेशन ऑफ अ परसेप्शन. आप इसको इस तरह से लो कि किसी भी चीज़ की एक वैल्यू हो सकती है, बट देयर इज ऑलवेज वी ऑलवेज से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस. आपने जो वैल्यूएशन किया इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है? सर इसकी वैलिडिटी पीरियड होती ही नहीं है, इट्स लैंड किए जा रहा है, बट इज गेटिंग वैल्यूड एट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमें काम दिया अगर, राइट, और वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको सेल्फ डाउट ही आ जाता है कि यार वो बोल रहे तो इतनी वैल्यू होगी, मेरी कैलकुलेशन गलत चल रही होगी, राइट. But over a period of time, of course, as you grow, as you become bigger, as you have more experience, and of course, it also depends on how ethically you drive your business. तो client की तरफ से pressure आता है, but if you have a reputation to keep, right, you will not bow down on that pressure. Simple take is कि अगर market में ये information है कि 200 करोड़ पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था या 800 करोड़ के वैल्यूएशन पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था और आज 70,000 करोड़ के नंबर पे IPO आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे द सेबी रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट. दे इवन रिक्वायर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू वेरीफाई एंड कंफर्म कि जो प्राइस बैंड आ रहा है वो रीजनेबल है, राइट. द कंपनी इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स रहे हैं, काफ़ी बोर्ड है, तो दे मस्ट हैव टेकन सम कॉन्शियस कॉल कि भाई हम ये प्राइस पॉइंट किस बेसिस पे निकाल रहे हैं. अल्टीमेटली नोबडी कम्स अप विद एन IPO टू फेल इन दैट IPO. AI इज अ बज़वर्ड. सो अब जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो उन कंपनीज में पैसे लगाएंगे तो दे विल लूज अगेन. बट जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है उनको मालूम है कि मैं अगर 10 AI ड्रिवन कंपनीज में पैसे लगाऊंगा तो 2 ही सक्सेसफुल होगा, बट मुझे नहीं पता इनमें से कौन 2 सक्सेसफुल होगा. तो इफ आई वांट टू अर्न अल्फा फ्रॉम AI, आई विल हैव टू पुट माई मनी इनटू 10 कंपनीज. 8 में पैसे गवाऊंगा, 2 में बनाऊंगा, बट 2 में जो बनाऊंगा वो 8 के पैसे को रिकवर कर देगा मुझे. Welcome viewers to the second episode of Flutebox TV. I am Manish Chaudhary, your host for today, and this is Tanish Agarwal, my co-host. Today we have as our guest Mr. Vikash Goyal. He is a CA and a CFA from ICFI Institute. He has been an alumnus of IIM Calcutta and he is pursuing a PhD. He has immense experience in the valuation field, and being finance students, covering valuation was an important part of our podcast. So welcome sir, we are glad to have you. Hi Manish and Tanish. Hi. So, sir, before we get into the technicals, we just wanted to understand your journey throughout. You are a chartered accountant and MS in finance from ICFAI. You have achieved 40 under 40 from ICI, and you are an IIM Calcutta alumni. And plus, after achieving all this, you are doing PhD in startup valuation. So, sir, what has been your inspiration throughout to devoting so much time to valuations and your? So I think I'm a product of confusion. Right. So while I was growing up I was amongst. So my father moved from Rajasthan to Kolkata many years back. He's into service. He still works for a small logistics company. It's been more than 45 years. So of course, like any aspirational middle class family, I was an average student in school, and my only aspiration in school was to get into Xavier's. Right. So class 11 and 12, I only studied hard so that I could get into Xavier's. By the time I was entering into college, I realized that I must do some professional course like any other middle class family in those times. And I was very confused as to what I should take up. After a weeks of ponderance and with no guidance around, I thought that I must take up the CFA program, which was offered by ICFAI at that time. And the day I decided that I should do the CFA program, my dad said that you should do CA at least. So again, I thought instead of getting into another round of confusion, let me take up both. So I did that. So again, 3 years of hardcore studies. So after I got into Xavier's, I was pursuing CA and CFA and graduation together, and also had a full-time girlfriend at that time, who's the mother of my daughter today. So it was a tough journey, but then yes, I think it was that commitment, that confusion that led me to ensure that I'm finishing those courses which I have taken up. Otherwise, वो लड़की नहीं मिलती या पापा से और सुनने को मिलता है कि तुम और confused हो. So I think it worked better for me at the end of the day. And before I finished my CA, I got into PwC. So I spent about 4 years there, first as an industrial trainee and then as a consultant. Again, I was very confused because I got a lot of offers while I was in PwC. I was not sure whether I should take those or not. So ultimately, I moved into a different domain completely, which was ICA. So from consulting and audit, I moved into learning solutions, which paved the way for my training journey or my academic journey further. And then again, when I left ICA, I joined EY. So I went into the Big Four again. Now again, yet another domain. And finally, when I realized that and it's not that I ever wanted to be an entrepreneur. It was not a pre-planned journey. I think everything that I have done till date has just happened. I mean, it has not required too much of planning.
So yeah, I started Omnifin in 2017 after I left EY. And valuation is something that I was very very passionate about, because since I was studying CA, मुझे बहुत पसंद आता था valuation as a subject that came in both CA and CFA. So that's the topic which has always been part of whatever I did, although it was never a full-time role in any of the organizations, but I was involved in that. So when 2018, when the concept of registered valuer came in, I thought I just want to do it, right? It was, and again, it just happened, right? Sir, होता क्या? What is this registered valuer? So see, valuation as a concept is prevalent across the world, right? I mean, anytime. So for example, आप अगर किसी कंपनी की merger, आप किसी कंपनी को acquire करने जा रहे हो, right? So at what price would you acquire that company? What is the value of that company for you? When you are buying the shares of another company, आप Reliance, TCS, Tata Steel, whatever, when you're buying the shares of a company, you see that is this worth buying, right? So that concept of valuation has been there throughout. But what happened, because Companies Act 2013 came in, and then IBC 2016 came in. So जब ये insolvency वाला process आया, so the government has regulated the whole concept of a registered valuer. So insolvency के अंदर में जब एक company को distress में डाल दिया जाता है, and then there has to be somebody who will resolve that company. So वहाँ पे वो valuation की ज़रूरत पड़ती है, and that is when the government introduced the concept of a registered valuer. Of course, the scope has now been widened. अभी mergers में भी चाहिए, अभी insolvency में भी चाहिए, अभी startups में भी चाहिए. So and at the end of the day, it's about quantifying the value or the worth of a business or of any asset, right? So I've loved that part, and matlab it's something that I was always passionate about. So now that's been the journey, and I'm really enjoying the roller coaster. Sir, before proceeding further, we want to understand कि from a valuation expert perspective, what does valuation mean to you, and general public के लिए what should valuation be? So very interesting question, Manish. I think as a professional valuer, valuation to me is quantification of a perception. आप इसको इस तरह से लो कि किसी भी चीज़ की एक वैल्यू हो सकती है, but we always say that there's a difference between value and price. Think about a bottle of water. एक बिस्लरी की बॉटल आप लो तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस 20 रुपये होती है, बट आप उसी बॉटल को अगर आपको वो नहीं मिले, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एक्सेस टू वाटर एट ऑल, राइट, आप एक डेजर्ट में चले जाओ, एंड इफ यू आर रियली रियली थर्स्टी, you might be willing to pay 2,000 rupees for that bottle of water as well, right? So that value of that simple bottle of water can change depending on the circumstances, depending on the kind of person you are, depending on the availability of that bottle of water. आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एंड वहाँ पे आप टेबल पे बैठे हो, आपसे वेटर आके पूछता है हाउस वाटर या मिनरल वाटर, आप यू चूज मिनरल वाटर, बट दैट सेम 20 रुपीज bottle of water, they might charge you 200 rupees, क्योंकि वो बाहर से आपको बिस्लेरी लाना नहीं देंगे. So again, that बिस्लेरी is not available inside for any other price, therefore you end up paying 200 rupees for that bottle. Again, there are regulations around it, but so valuation is always about perception, and my job is to quantify that perception. And usually it will be for business, it will be for land, it will be for different types of assets, for brands, and we can talk about that as we go along. So सर, एक जनरल पर्सन जो लेट्स से वैल्यूएशन से इतना फेमिलियर नहीं है, उसका बैकग्राउंड है नहीं वैल्यूएशन में, वो डेली बेसिस में भी अपने माइंड में किसी चीज़ों को तो वैल्यू करता होगा. सपोज वो कुछ खरीदने जा रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे इतनी प्राइस पे करना चाहिए. तो एक नॉर्मल आदमी के में और आप में जो थिंकिंग में डिफरेंस है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट द डिफरेंस इज? Again, a very interesting question. So I think, for example, आपकी मॉम या मेरी मॉम, मेरी वाइफ, जो भी जब सब्जी लेने जाते हैं तो उनको मालूम है कि ये आलू खरीदना है तो उसकी कितनी प्राइस है. अभी एक वेंडर अगर ज़्यादा प्राइस बता रहा होता है तो वो उनको मालूम है कि नहीं, दिस प्राइस इज टू मच, आई विल नॉट पे फॉर इट, राइट? सो somebody who's not educated at all around the concepts of valuation also understands the value, right, of any asset. It is about understanding that particular product. But at the same time, मैं अगर आलू खरीदने जाऊँगा, अगर मुझे आलू खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ज़्यादा प्राइस दे के आ जाऊँगा, इनफैक्ट दे ही आता हूँ, राइट? सो मेरे और उनमें डिफरेंस क्या है कि उनको उनके प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, उनको मालूम है कि आलू कितने का बिकना चाहिए, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को मालूम है कि रियल एस्टेट की प्राइस कितनी होनी चाहिए. मुझे मेरे बिजनेसेस के बारे में पता है. सो आई एम ट्रेन्ड टू वैल्यू बिजनेसेस, आई एम नॉट ट्रेन्ड टू वैल्यू अ पोटैटो, a kg of potato, right? So मेरी अंडरस्टैंडिंग में इतनी डिफरेंस है कि एक बिजनेस एज अ होल, एक बंडल ऑफ एसेट्स है, उसकी वैल्यू को करने का एक एक्सपीरियंस है, एक ट्रेनिंग है, एंड एक एक्यूमेन है, राइट? जो कि बहुत सारे लोगों में होता है. इनफैक्ट आई ऑलवेज से दिस दैट if you meet an industrialist who has been running businesses, their sense of valuation of a business
is usually far better than what even we have. बिकॉज उन्होंने उस बिजनेस को चलाया है, राइट? हम लोग तो फिर भी एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं, तो हमें मालूम है कि बाकी बिजनेसेस की क्या वैल्यू होगी, बट दे हैव अ वेरी डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट पुटिंग कॉन्सेप्ट्स इनटू अ फ्रेमवर्क. It's more about understanding the business and the industry, and then quantifying the perceptions, like I said. By perception, how do you think that perception changes? Because over the year तो साल basis में ही perception change होता है. साल भी मैं ज़्यादा ही बोला, I think between months perception change. तो how do you value companies जब perception इतनी change हो रहे हैं, तो how do you bring that dynamic factor into the play? So again, when we look at valuation, हम लोग हमेशा बोलते हैं valuation is at a point in time. वैल्यूएशन ओवर अ पीरियड नहीं होता. कई बार हमसे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपने जो वैल्यूएशन किया है इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है. सर, इसकी वैलिडिटी पीरियड होती ही नहीं है. इट्स लाइक बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम. थिंक ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट? द स्टॉक प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट और ऑफ एनी स्टॉक keeps on changing on real time basis, right? So everybody who's buying it is buying it at a value which is the value of that stock to that person. Similarly, everyone who's selling it that's the value for the person who's selling it. So it will change depending on hundreds of factors. हम लोग ये कहते हैं कि 300 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को के वैल्यू को ड्राइव कर सकते होंगे. 300. More than 300. I mean, there are innumerable factors actually. 300 तक तो हम पहुंच पाए हैं, right? And we try to categorize them into 6 broad drivers of value, which will include product, prices, profile, plans, planet, right? And so on. So it's very difficult to say what are the factors that drives the value, but it could be, let's say अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, राइट? उनके करंट एसेट्स होंगे, उनके ऑर्डर बुक होंगे, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स होंगे, राइट? उनके पीपल प्रोसेसेस होंगे. आई हैव एन अमेजिंग बिजनेस बट देन आई एम नॉट एबल टू रिटेन माई पीपल. आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव दैट वैल्यू इन द लॉन्ग रन, राइट? इसकी एक और जर्नी है, इफ़ वी हैव टाइम वी कैन टॉक अबाउट इट, कि आज से 400 साल 500 साल पहले व्हेन वी यूज्ड टू लुक एट द वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस, तो हम बोलते थे कि लुक एट द बैलेंस शीट, राइट? बैलेंस शीट था 400 साल पहले भी, राइट? तो वी वुड लुक एट द बैलेंस शीट एंड से ओके, ये इसके एसेट्स है, ये इसकी लाइबिलिटीज है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को माइनस करके जो नेटवर्थ मिला वो वैल्यूएशन हो जाती थी. देन वी सेड कि यार थिंक अबाउट इट, आज आई माइट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, राइट? बट ये जो बैलेंस शीट है मेरे पापा ने मेरे लिए बना करके दी है. नाउ आई एम अ नालायक बच्चा एंड आई एम नॉट एबल टू रन द बिजनेस प्रॉपर्ली. So then people started saying कि think of continuing businesses and therefore profits came into place. So we saw that okay, balance sheet तो ये दिख रही है but look at the P&L also. इसमें revenue आ रहा है क्या, इसमें profits आ रहे हैं क्या? तो valuation focus balance sheet plus profits पे आया, not replaced ना. Okay. Then we said कि चलो but profits can be manipulated, हम लोग accrual system पे काम करते हैं etc. So आप देखो अभी profit पे लिए हम लोग PE multiples use करते थे ना, price earnings multiple. That's valuation driven by profits. प्राइस सेल्स मल्टीपल भी यूज होता है, एबिडा मल्टीपल भी यूज होता है. देन वी सेड कि बट प्रॉफिट्स कैन बी मैनिपुलेटेड, सो कैन वी लुक एट कैश फ्लोज. सो आप देखो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन हैज बीन प्रेवलेंट. मोस्ट बुक्स टॉक अबाउट कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन. एंड नाउ इन टुडेज टाइम्स वी आर सेइंग दैट देयर इज अ कंपनी विच इज नॉट जनरेटिंग एनी कैश फ्लो, जो कि बर्न किए जा रहा है, बट इज गेटिंग वैल्यूड एट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, राइट? एंड वी हैव बीन पार्टी टू सम ऑफ दोज वैल्यूएशंस. So now we are saying that are you creating value for the ecosystem? Think of a Flipkart or a Byju's or a Lenskart or a Paytm, and there are so many others, right? Who are not generating positive cash flows, but they are creating value for the ecosystem, because of which they are also getting valued. So now the value is also driven by intangibles, जो कि balance sheet पे है ही नहीं, right? But do you think कि valuation long term में justified होनी चाहिए अगर cash flows आ ही नहीं रहे हैं तो? See, अगेन एज अ वैल्यूअर हमारा काम होता है किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई कर पाना, राइट? तो आज अगर आप ये कह रहे हो, आज अगर कोई मुझे आके कहता है कि देखो मेरा बिजनेस इतना अच्छा है, मेरे को इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन अजम्पशंस को, उन क्लेम्स को हम कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करा के दिखा पाएँ. तो आज अगर मेरे सामने एक नई बिजनेस आती है जो कहती है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हैं, बट आज हमने सिर्फ आइडिया क्रिएट किया है, हमारे पास कोई एसेट इन प्लेस नहीं है, हम कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरी को नंबर्स में बदल के, उनके फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस को एस्टिमेट करके, उसको डिस्काउंट करके मेरा जॉब है कि मैं आज उस नंबर को क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं. एंड देन उसके अंदर में बहुत सारे हमारे भी टूल्स बन चुके हैं. हम लोग सिमुलेशंस लगाते हैं, हम लोग सिनेरियोज लगाते हैं, रियल ऑप्शंस लगाते हैं. दोज आर फेयरली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, बट वी ट्राई टू क्वांटिफाई दोज अजम्पशंस. एंड वी ऑल्सो ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क एंड probabilities of failure. All of that put together. Of course, at the end of the day, most of these are assumptions. I mean, nobody has that crystal ball to say कि ये सही हो जाएगा. But yes, the idea is to
to be able to put a number to those assumptions. So we only try to do that. ओके सो सर मूविंग ऑन, जैसे कि हमने बोला कि हम कुछ भी आज के दिन पे वैल्यू कर सकते हैं, सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कैन वी वैल्यू द एयर वी ब्रीथ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहली बात, मैंने नहीं कहा कि मैं कुछ भी वैल्यू कर सकता हूँ. हम लोग, बट यस, चलो एज अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल, लेट मी पुट अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, राइट. किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने का पर्पस होना चाहिए. देयर हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड एनी वैल्यूएशन. So if I say that, okay, we are in a room and there is air in this room that we are breathing, and this is the value of that air, what is the relevance of that value? There's no relevance. This air is available freely for us, correct? But think about COVID times. Jab there were people who were struggling in hospitals and they needed air to breathe, and the air around them was not sufficient because of their own personal circumstances, and oxygen cylinders were not easily available. People were willing to pay a bomb to get that one can of oxygen also, which would help them breathe at that particular time. कोई वैल्यू नहीं होती उसकी. It is invaluable, right? So, I mean, technically we could put any number to anything, but then there has to be a relevance, right? I'll be a fool to say कि इस air की ये value है. It will depend on the purpose and the circumstance. So, sir, moving for formal companies या कोई formal businesses हुआ, how do you value these businesses and assets real life में? Can you give some practical examples जो आपने देखा हो या किया हो? So whenever we value any business, it's very important to have a very good understanding of that business, of that industry, of that environment in which the business operates. No two businesses are exactly identical ever, right? Every business will have its own dynamics. So now the valuation profession has created some frameworks. So for example, we say that there are three broad approaches to valuation. One is a cost approach, one is the income approach, and one is a market approach. I'll quickly run through each one of them for you quickly. Right? Okay, So if you look at the cost approach, basically we start with the balance sheet. So we say that look at the balance sheet of this company. Right? उसमें assets कितने, liabilities कितने, asset liabilities minus किया, net worth आ गया, ये कितना है. So for a business which is absolutely new, उसके पास में हमको मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या projections होंगे, and it's a normal traditional business which is very very new. So in these kind of businesses हम लोग cost approach लगा करके आगे बढ़ जाते हैं. On the other hand, think of businesses which are nearing the grave, right? I mean, ये businesses बहुत distressed position पे हैं. अभी इनका हमको future नहीं दिख रहा है. तो for those businesses जहाँ पे future नहीं है, whether they are absolutely new businesses or absolutely distressed businesses, हम लोग cost approach लगा करके balance sheet के basis पे उनकी valuation करके आगे चले जाते हैं. नाउ जो बिजनेसेस थोड़े से यंग और मच्योर्ड होते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेट्स लुक एट द मार्केट अप्रोच ऑल्सो. सो मार्केट अप्रोच का मतलब हो गया, इफ आई हैड टू वैल्यू द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टुडे फ्रॉम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव, राइट? आपको 10,000 रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं. देयर इज नो पॉइंट इन आइडेंटिफाइंग अ वैल्यू, राइट? दैट शेयर इज ट्रेडेड इन द मार्केट. तो आपको जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मिल रखी है, आप उस पर ट्रेड कर लो, आपके लिए कंपनी की वही वैल्यू है. बट इफ देयर वाज अ कंपनी विच वांटेड टू अक्वायर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो एक मेजॉरिटी शेयर होल्ड करेंगे, तो फिर वो माइनॉरिटी शेयर्स की वैल्यू मैटर नहीं करती है. अगेन थिंक अबाउट इट. व्हाई? लेट्स से आई वांटेड टू बाय 10 करोड़ शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड नॉर्मली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रिलायंस के दिन के 5 लाख शेयर्स ट्रेड होते होंगे. तो अगर मैं 10 करोड़ शेयर्स को ट्रेड करने जाऊंगा और मैं मार्केट में ही ट्रेड करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? द स्टॉक प्राइस विल गो बिकॉज द डिमांड हैज गॉन अप. Yes, and therefore the price will shoot up significantly. अभी 20% का सर्किट लग गया. तो जहाँ पे हमारा majority शेयर होल्डिंग होता है, वहाँ पे this market price usually doesn't work, right? Similarly, जब हम एक प्राइवेट कंपनीज को वैल्यू करते हैं जिसकी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बट उनके उससे रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज मार्केट में ट्रेड करते हैं. A matured FMCG company or a matured steel company, those kind of companies, जहाँ पे there are listed companies available, तो वहाँ पे हम लोग multiples based valuation use करते हैं. ये भी market multiples के अंदर या market approach के अंदर ही fall करता है. इसमें हम लोग देखते हैं कि earnings multiple क्या है. तो हमने बाकी companies के price और earnings का जो multiple है, price earnings multiple, वो निकाला. उस मल्टीपल को इस कंपनी के प्रॉफिट पे अप्लाई कर देते हैं, हमको एक बॉल पार्क वैल्यू मिल जाती है. सिमिलरली हम लोग एबिटा मल्टीपल लगा सकते हैं, हम लोग सेल्स मल्टीपल लगा सकते हैं, हम लोग बुक वैल्यू मल्टीपल लगा सकते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग मल्टीपल्स भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर में ऑपरेटिंग वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं. एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉई, राइट? नेट इंटरेस्ट मार्जिन. सो देयर आर डिफरेंट ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू. ई कॉमर्स में होता था, आजकल नहीं यूज़ करते.
So these are market based approaches which helps you quickly arrive at a valuation of a company without really deep diving into the nitty gritties of the organization. So हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मार्केट मल्टीपल्स को बेंचमार्किंग के लिए यूज कर लेते हैं, राइट, बिकॉज ये कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कोर वैल्यू है वो नहीं दे रहा है. हम लोग हमेशा कहते हैं द कोर वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी इज ड्रिवन बाय द इनकम अप्रोच, वेयर वी लुक एट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. सो एक कंपनी हमको लगता है कि ये पिछले 4 साल से इतना रेवेन्यू कर रहा है, इतना प्रॉफिट्स कर रहा है, इतना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द बिजनेस इज प्लानिंग टू ऑपरेट इट्स बिजनेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वी प्रोजेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज, उसके रेवेन्यूज को, एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट्स को, कैश फ्लोज को, वर्किंग कैपिटल और केपेक्स प्लान्स, सब चीज़ों को लेकर के वी अराइव एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्री कैश फ्लो. फिर फ्री कैश फ्लो का मतलब हो गया कि कंपनी के अपने खर्चे बाद देने के बाद में मेरे पास शेयर होल्डर के लिए क्या बचेगा या स्टेक होल्डर्स के लिए क्या बचेगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट. तो उस फ्री कैश फ्लो को हम लोग, जो प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो है, उसको हम लोग डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हैं, which is DCF. which is a discounted cash flow method, also known as the DCF method or the income approach method. Now, we can go on and on because there are nitty-gritties involved in it, but that's how we look at the valuation. So, is it possible कि आप जो assumptions ले रहे हैं, let's say कोई भी मॉडल बनाने में या कोई भी forecasting करने में, it might be different from a different valuer? Yep, absolutely. So again, if I was a research analyst, right, जहाँ पे मुझे कंपनी ने नहीं अपॉइंट किया वैल्यूएशन करने के लिए, तो आई विल हैव माई ओन अजम्पशंस बेस्ड ऑन व्हाट द कंपनी इज सेइंग एंड व्हाट आई बिलीव व्हाट द कंपनी इज सेइंग इज. फॉर एग्जांपल आज एनालिस्ट कॉल्स होते हैं, राइट, या आपके अर्निंग्स कॉल्स होते हैं जिसपे कंपनी के CFO आकर के बताते हैं कि हमारे ये प्लान्स हैं, एंड देन उसके बाद में जो एनालिस्ट है वो उनको अपने अजम्पशंस के फ्रेमवर्क में डाल करके रैशनलाइज कर लेते हैं. सो अगर 10 इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होंगे तो 10 के 10 एनालिस्ट की अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, बिकॉज दे आर मेकिंग द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देमसेल्व्स, राइट. बट दिस इज व्हेन आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इक्विटी रिसर्च पर्सपेक्टिव, एंड देन दे गिव द बाय सेल रिकमेंडेशन. एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यूजुअली द कंपनी गिव्स अस द प्रोजेक्शंस. कंपनीज, बिकॉज ये प्राइवेट मार्केट हो गया, इवन इफ इट इज डन बाय लिस्टेड कंपनी, ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन होता है, हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होता है. So now the company gives us the projections. We look at, our job is to see whether the projections are rational, reasonable or not. So if we think that these projections are too aggressive or too conservative, it's our job to discuss with the company and see that, hey, explain how are you arriving at these assumptions, or we don't think this is going to happen, so rationalize these assumptions. तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स हमारे केस में कंपनीज बना के हमें देते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं, वेट करते हैं, रीएडजस्ट करवाते हैं, एंड देन वी लुक एट द डिस्काउंट रेट्स एंड उसको डिस्काउंट करके वैल्यू करते हैं. किसी MNC की वैल्यूएशन या किसी स्मॉलर कंपनी के वैल्यूएशन में आर देयर लॉट ऑफ डिफरेंसेस या फिर ओवरऑल फ्रेमवर्क सेम ही रहता है? See, the framework is always the same, but the differences are immense, right? So again, if I am doing the valuation of a listed company or a large company versus a very small private company, the biggest challenge is the transparency of that information. एक लार्ज कंपनी के पास में एक बड़ी टीम है, उनके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स है, उनके पास क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनको मालूम है कि प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, उनके ऊपर में रेगुलेटरी प्रेशर है कि वो हाई गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, एंड उनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो इंश्योर करेंगे कि जो प्रोजेक्शंस वो दे रहे हैं वो आंसरेबल होने चाहिए, डिफेंसिबल होने चाहिए. एक स्टार्टअप या एक प्राइवेट कंपनी के पास में वो रेगुलेटरी प्रेशर भी नहीं होता है और उनके पास में वो टीम भी नहीं होती है. तो हमारे पास बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई फाउंडर आके हमें कह रहा है कि विकास, हमारी प्रॉफिट 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, बट हमें तो 200 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, आप DCF से बना दो. तो उन्हें लगता है कि वैल्यूएशन खाली एक एक्सेल स्प्रेडशीट पे होता है, तो हमें उनको बहुत एडुकेट करना पड़ता है. एंड इफ वी देन सी कि नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैलिफाइड है या किसी को चीट करना है, या so if it is unethical objective, of course we don't go about it. And if we think that it's a lack of education, we educate them to bring them on board कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए. You can't just put a number to anything like that, right? Correct. Sir, what are the objectives behind valuing something? So let's say you're valuing a company, you're valuing anything like a land. So उसके पीछे के objectives क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्टिव है. सो फॉर एग्जांपल, आप मतलब आई कुड वैल्यू अ कंपनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अ पर्पस ऑफ हु इज अपॉइंट. सो आप अगर मुझे वैल्यूएशन के लिए अपॉइंट कर रहे हो, आपकी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो देयर कुड बी सो मेनी पर्पसेस, राइट. आपको फंड रेज करना है, दैट कुड बी अ पर्पस. आपको IPO में जाना है, दैट कुड बी अ पर्पस, दैट्स अगेन फंड रेज. आपको अपनी कंपनी का एक्विजिशन करवाना है या किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर करना है, दैट कुड बी अ पर्पस. आपके शेयर्स कोई और होल्ड करता है, तो उनको आप
यू आर देयर इन्वेस्टी कंपनी, राइट, यू आर पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, तो उनको अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कराना है, इसलिए वो मुझसे वैल्यूएशन करवा रहे हैं. वो डिस्ट्रेस हो सकता है, तो अगेन उसको बेचना है, इसलिए वो करवा सकते हैं. तो परचेज, सेल, फंड रेज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देयर आर न्यूमरेबल रीजंस व्हाई वैल्यूएशन वुड बी रिक्वायर्ड. सेम फॉर लैंड, मतलब पोर्टफोलियो के लिए भी होता है, बाई सेल के लिए भी होता है, लोन लेने के लिए भी होता है. लैंड के अगेंस्ट में मुझे लोन लेना है, तो द बैंक्स वुड आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ द लैंड अगेंस्ट विच दे कैन गिव अ लोन. So many reasons आते हैं. So are there pressures from clients की बहुत बार, जैसा आपने पहले मेंशन किया था कि they have nullified objectives, जिसमें वो कभी कभार बोल देते हैं कि we want this value, we want this value. How prevalent is this in the industry? A lot. See, बहुत prevalent है. Again, क्या होता है, आपकी reputation के basis पे वो pressure कम या ज़्यादा हो जाता है. So, of course, in the initial period, एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमें काम दिया अगर, राइट, और वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको सेल्फ डाउट ही आ जाता है कि यार वो बोल रहे तो इतनी वैल्यू होगी, मेरी कैलकुलेशन गलत चल रही होगी, राइट. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, यू एज यू ग्रो, एज यू बिकम बिगर, एज यू हैव मोर एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ एथिकली यू ड्राइव योर बिजनेस. तो क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आता है, बट इफ़ यू हैव अ रेपुटेशन टू कीप, राइट, यू विल नॉट बाउ डाउन ऑन दैट प्रेशर. सो हम लोग, आई मीन, रेगुलेटरी वैल्यूएशंस में तो बिल्कुल भी नहीं, बट हम लोग ये बोलते हैं कि चलो, एक होता है ना कि मेरा वैल्यू 100 आ रहा है और आपके हिसाब से 110 आ रहा है, तो हम लोग सुनने के लिए रेडी है कि भाई आपका 110 क्यों आ रहा है, राइट. बट अगर मेरा नंबर 100 आ रहा है और आपको 500 चाहिए, देन देयर इज नो वे वी कैन प्रोसीड ऑन दैट. सो क्लाइंट्स के अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट लाइक आई सेड, राइट, इट्स द इंटेंशन. सो वी आर ऑलवेज ओपन टू हियरिंग देम कि उनका ये वैल्यू क्यों आ रहा है, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर नंबर एंड देयर एक्सपेक्टेशन. बट देन वी विल नॉट साइन ऑन अ नंबर विच इज नॉट डिफेंसिबल, राइट. It should be defensible, it should be fair, because if I'm giving a value which is jeopardizing somebody else's interest, then I'm doing a bad job, right? And I should never be doing that. And that somebody could be the government, it could be the investor, it could be anybody. So yeah, sometimes it comes, but then you have to handle it. So if we talk about startup valuations, most of the time हम देखते हैं कि startup valuations don't make sense from a retail investor, from a general public perspective. अभी अगर हम लोग Lenskart की IPO का बात देख लें, तो there's been a lot of discussion or talks about it, and a lot of people are grilling the founder, Mr. Piyush Bansal ji. So what is your view on it? Because even if we read a basic report on it or a news article on it, it feels like कि हाँ, the company seems to be overvalued, या फिर जो कंपनी की वैल्यू है टाइम से ज़्यादा हो रही है. So see, we already discussed, right, that valuation is always going to be about the perception. Okay. Aj, I have seen some of those reports and we are not transacting on that company. But at the same time, I usually refrain from commenting on the valuation of any specific business. But my simple take is कि अगर market में ये information है कि 200 करोड़ पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था या 800 करोड़ के वैल्यूएशन पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था और आज 70,000 करोड़ के नंबर पे IPO आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे द सेबी रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट. दे इवन रिक्वायर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू वेरीफाई एंड कंफर्म कि जो प्राइस बैंड आ रहा है वो रीजनेबल है, राइट. द कंपनी इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स रहे हैं, काफ़ी बोर्ड है, तो दे मस्ट हैव टेकन सम कॉन्शियस कॉल कि भाई हम ये प्राइस पॉइंट किस बेसिस पे निकाल रहे हैं. अल्टीमेटली नोबडी कम्स अप विद एन IPO टू फेल इन दैट IPO. बट एट द सेम टाइम, एंड आपको ज़्यादा लग रहा है, आप मत इन्वेस्ट करो यार. हु इज आस्किंग यू टू? आपको कोई प्रेशर थोड़ी है, राइट. देर आर 10,000 कंपनीज विच आर ट्रेडिंग इन द मार्केट. अभी भर के IPOs आ रहे हैं. तो आई थिंक द मार्केट इज अ वेरी गुड जज, राइट. द मार्केट, वी शुड नॉट बी ड्रिवन कि यार लेंसकार्ट है, पीयूष बंसल है, तो मुझे इन्वेस्ट करना ही है. आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, आप मत इन्वेस्ट करो. आपको रीजनेबल लग रहा है, आप करो. आप अगर एक अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, देन प्राइस ऑफ, देयर आर सो मेनी स्टॉक्स हुज प्राइसेस आर ओवर वैल्यूड इन द मार्केट. यू आर नॉट बाइंग देम. डोंट बाई दिस. व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर एनर्जी? मुझे लग रहा है ज़्यादा है, मैं नहीं बात करूँगा, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं. मेक सेंस सर. तो सर आपने पास्ट में बहुत सारी वैल्यूएशन की हुई है, तो सर ऐसा कोई एग्जांपल है जहाँ पे आपकी वैल्यूएशन के चक्कर में किसी कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, या फिर कोई डील है वो एकदम ही मतलब चेंज हो गया, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत होता है. आई मीन, सी, सो एज वैल्यूएशन एडवाइजर्स, कंपनीज कम टू अस टू गेट द वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस और एनी एसेट, राइट. नाउ बहुत केसेस होंगे, देयर वुड बी स्कोर्स ऑफ केसेस वेयर they came to us thinking कि ये transaction करना है, and they asked us for a valuation. We did the valuation, and that valuation was not fitting into what they expected the valuation to be. And like I said, when we educate them, right, so I told them that this is not going to work, right. आपका board इसको approve नहीं करेगा, या आपके shareholder इसको approve नहीं करेंगे. We are working with 70+ listed companies.
And there are, I mean, every day we are working with organizations who are coming to us for valuation opinions. There would be hundreds, I mean, scores of cases जहाँ पे decisions change हो गए होंगे. कोई इंटरेस्टिंग केस अगर आप बिना नाम लिए मेंशन कर पाए. I mean, okay, so let's say there was a person who used to run a school. एंड उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, बंगाल में है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था. और वी विजिटेड द स्कूल, कैपेसिटी अच्छी थी, ट्रैक्शन अच्छा था, सब कुछ था. एंड ही थॉट कि ये स्कूल की इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, राइट. एंड वी फेल्ट कि नहीं, ऑफ कोर्स इनिशियली प्रिलिमिनरी हमें लगा कि हाँ लैंड की वैल्यू ही काफ़ी ज़्यादा है और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रैक्शन अच्छा है, एजुकेशन बिजनेस है, इट अपीयर्स टू बी गुड. बट देन when we went down to doing that valuation, we realized कि ये valuation तो आधी आ रही है. It's not even going to exceed 50% of what, I mean, it's going to be half of what the expected valuation was. हमारा अपना preliminary assessment, let's say अगर 60 करोड़ पे था, तो हमारा जो conclusion था वो 30 करोड़ पे आ गया था. और उसकी reason ये थी कि infrastructure बहुत अच्छा है, but जो market expansion है, जो हम लोग जब उसको project कर रहे थे उस cash flows को, तो हमें लग रहा था कि ये number तो feasible होगा ही नहीं. एंड हमारी वैल्यूएशन, खुद की वैल्यूएशन आधी आ रही थी उससे. सो ऑफ कोर्स दैट डील डिडंट हैपन. इनफैक्ट देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे 13,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़े लिस्टेड कंपनी ने 6 months होल्ड कराया है बिकॉज ऑफ आवर वैल्यूएशन ओपिनियन. एंड they gave us a lot of appreciation for those points of view. So gradually we have ऑफ कोर्स जहाँ पे रेगुलेटरी वैल्यूएशन है वहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन पे एडवाइस नहीं कर सकते. बट अभी हमारा पोजीशन ऐसा हो रहा है ओमनीफिन में कि कंपनीज रीच आउट टू अस फॉर वैल्यूएशन एडवाइजरी. सो वो ट्रांजैक्शंस पे हमसे एडवाइस फॉर्मेट में आ जाते हैं कि भाई टेल अस वेदर दिस इज गोइंग टू हेल्प अस एनहांस द वैल्यू ऑफ आवर कंपनी और नॉट, और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इसका. एंड लाइक आई सेड दोज लॉट ऑफ वैल्यूएशन ड्राइवर्स, राइट, जो वैल्यू ड्राइवर्स की हम बात करें, विच आर लॉट ऑफ इंटेंजिबल्स, पीपल, परसेप्शन, प्लैनेट एंड सो ऑन. सो या बहुत ट्रांजैक्शंस हैं. एक ब्रांड ड्रिवन बिजनेस में या फिर एक प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस में क्या डिफरेंस आएंगे ड्राइवर्स में? लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक कोका कोला और वी टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक टाटा स्टील, दोज आर वेरी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज बिकॉज कोका कोला का ड्राइवर उसका ब्रांड वैल्यू है, जो उसका नाम है कोका कोला का, एंड टाटा स्टील का तो मेन प्रोडक्ट है. लेट्स से नहीं, बट टाटा स्टील का भी ब्रांड है एंड बोथ ऑफ देम आर हाईली ब्रांड ड्रिवन बिजनेसेस. सी, brands are created based on products only. A good brand will never sustain if the product is not good. Let me take you through an example of Kingfisher, right? Kingfisher initially क्या था? एक beer brand था. Yes. जब उसी ग्रुप ने एक एयरलाइन स्टार्ट किया तो उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन ही दे दिया उसका नाम, right? So in a way they leveraged the brand. But why would have they used the same Kingfisher brand for the airlines? I have not worked with that brand, so I'm going to talk like an outsider. So there may be some factually incorrect points, but I'm talking about my point of view. Let me be very clear around that part. So maybe it was a bird, maybe it was a brand, we don't know. But at the end of the day, today the Kingfisher beer still exists. People still consume that. Yeah. But what has happened to the Kingfisher brand, the airline brand, that has gone out for a toss. So जब प्रोडक्ट खराब होता है ना तो सबसे पहले ब्रांड गिर जाता है, राइट. सो इनफैक्ट आईड लाइक टू हाईलाइट दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ योर व्यूअर्स माइट वांट टू नो अबाउट इट. हमारे पास बहुत बार क्या होता है, कंपनी आती है बोलती है कि मेरे बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, मेरे लेट्स से मेरा 10 करोड़ का रेवेन्यू और 1 करोड़ का प्रॉफिट है और यही रेंज में ये चल रहा है. बट वो कहते हैं कि व्हाट अबाउट माई ब्रांड, मेरा ब्रांड भी तो बहुत ज़्यादा है. सर, ब्रांड आपके बिजनेस से ही बन रहा है. सो अगर आपका ये ब्रांड होने के बाद भी आपके 10 करोड़ की रेवेन्यू है तो बिजनेस के वैल्यू के अंदर ब्रांड वैल्यू इंक्लूडेड है, राइट. मार्जिन्स रिफ्लेक्ट कर देती है क्या? ऑफ कोर्स. सो व्हेन यू वैल्यू अ ब्रांड, हाउ वुड द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड कम अप? इट इज सो आपने टाटा स्टील का एग्जांपल लिया ना, तो लेट्स से कल मैं भी वही स्टील बनाने लग जाऊं जो टाटा स्टील बना रहा है, राइट. इट्स अ स्टील ना एट द एंड ऑफ द डे. ऐसा पॉसिबल है ना कि जो क्वालिटी ऑफ स्टील है वो मैं वैसी क्वालिटी ला ही सकता हूँ. अल्टीमेटली जमीन के नीचे से तो आयरन ओर निकल रहा है ना. बट विल आई बी एबल टू सेल द सेम अमाउंट ऑफ स्टील दैट टाटा स्टील सेल्स? No. So my volume would be different. Will I be able to command the same price that a Tata Steel commands? नहीं, मार्जिन कम होगी, मार्जिन डिफरेंट होगा. सो मेरा वॉल्यूम प्रीमियम टाटा स्टील को मेरे से ज़्यादा है और प्राइस प्रीमियम भी टाटा स्टील को मेरे से ज़्यादा है, एंड देयरफॉर प्रॉफिट प्रीमियम भी टाटा स्टील को मेरे से ज़्यादा है. तो वो जो ब्रांड है वो ब्रांड ही उस प्राइस को ड्राइव कर रहा है इन अ वे. बट वो ब्रांड बना कैसे है?
वो ब्रांड उस प्रोडक्ट के लीनियज से ही तो बना है ना एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो वन फीड्स द अदर, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द प्रोडक्ट ओनली विल ड्राइव द ब्रांड विल लेटर ड्राइव द प्रोडक्ट, राइट? तो हम लोग ब्रांड एडवाइजरी करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी अच्छा हो गया तो आप उसको लेवरेज करो. सो इट वॉज अ वेरी गुड एडवाइस टू किंगफिशर जब वो किंगफिशर बियर से किंगफिशर एयरलाइन पे आए, राइट? गुड एडवाइस. बर्ड है, आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है, रिलेट कर पाएंगे लोग, राइट? बट देन आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yeah. Yes, sir. तो सर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देती है. तो लेट्स से कोई स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है या फिर कोई आईपीएल की टीम है एंड हम जानते हैं कि उसकी आज के दिन पे वैल्यू बहुत हाई है. सर ये वैल्यू फिर कहाँ से डिराइव हो रही है? So again, if you're talking about a sports franchise, and we've experienced valuing some of those. So for a sports franchise, the brand doesn't matter. Brand बाद में बनता है. How does a sports franchise get its value? So अगर आपने एक sports franchise खरीदा, let's say आपने एक बार hypothetically बात करते हैं, आपने कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदा, right? So जब आप उस ब्रांड को खरीद रहे हो तो there is somebody who's selling that franchise to you. Somebody has created that, right? तो देयर इज अ बॉडी जिसने इस इकोसिस्टम को बनाया है, इस टीम को बनाने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है, और जब आप उस टीम को खरीद रहे हो तो उसके साथ में आपके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल जब आपने उस टीम को खरीदा तो यू आर गेटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू दोज स्पोर्ट्स पीपल. तो आप उन स्पोर्ट्स पीपल के टाइम को यूज कर सकते हो टू क्रिएट ब्रांड एंडोर्समेंट्स. So the franchise owner will get the revenue from the brand endorsements that the sports team, that the players are doing for different brands. One. Second, उनको टिकट राइट्स मिलते हैं कि अगर इस स्टेडियम में जो कोलकाता में जितना भी मैच होगा उस स्टेडियम से जो स्टेडियम के टिकट सेल से जो पैसे आएंगे वो फ्रेंचाइज ओनर को जाएगा. एंड देयर इज अ स्प्लिट इन इट. Some will go to the main sponsor, some will go to the sports ground if it is not belonging to the franchise, and some will come to the franchise. Then you will have stadium advertisement rights, उसके भी शेयर होते हैं. फिर आपको एयर टाइम राइट्स मिलता है, उसके शेयर होते हैं. तो यू गेट मल्टीपल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू बाय अ स्पोर्ट्स टीम. तो वो आपका टॉप लाइन आया, या वो आपके लिए रेवेन्यू बना, या कैश इनफ्लो बना. आपको कैश आउटफ्लो भी करना पड़ता है बिकॉज आपको मर्चेंडाइज सेल्स लेट से करना है. तो आपको मर्चेंडाइज सेल से पैसे आएंगे, बट एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा, ब्रांडिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करने पड़ेंगे, टीम के ट्रेनिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब आपके पास अगर वो ग्राउंड नहीं है तो आपको ग्राउंड रेंट करना पड़ेगा सो दैट द टीम कैन प्रैक्टिस. सो दोज आर योर एक्सपेंसेस. सो यू हैव रेवेन्यूज माइनस द एक्सपेंसेस विच विल लीड टू द कैश फ्लोज. इस कैश फ्लोज के बेसिस पे आपकी टीम की वैल्यूएशन होगी. ओके. एंड देन देर आर एसेट्स. सो आपके पास यू हैव द राइट टू यूज द टीम मेंबर्स टाइम, सो दैट गोज इन एज पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट. सो समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि इसमें जर्नी है. सो अगर अपने आईपीएल की बात करें तो राइट, सो इट्स बीन अराउंड फॉर अ वाइल. सो द वैल्यूएशन वुड हैव मच्योर्ड. अभी ये प्रूव हो चुका है. बट नाउ you have the Indian soccer league, you have the kabaddi league, you have so many other leagues coming up. So because these are new sports, we don't know today कि आज ये इतना सक्सेसफुल होगा क्या. Now one could argue कि हाँ, मुझे तो लगता है होगा, but then पता चला कि उसको मैच्योर होने में 15 साल लग गए. तो if I am the franchisee owner, do I have the funds to sponsor this for 15 years? So that those are the dynamics for a franchise valuation. सर किसी दूसरे पॉइंट पे आपने मेंशन करा कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज होता है किसी एसेट या कंपनी का वैल्यू. सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे चेंज होता है वो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग? So there's always going to be this life cycle, right? एक लाइफ साइकिल ऐसा जाता है, right? There's this curve. So usually every business has a curve. So एक वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, it grows at a increasing pace and then it goes at a decreasing pace and then it flattens, then it goes down. That's the normal life cycle for every business or industry in fact, right? Now ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन कभी डिफाइंड नहीं होता है. This timeline could be 3 months, 3 years, 30 years, 300 years. You don't know. So how is it that some businesses have survived 100, 150, 200 years and there are other businesses जो 30-35 साल से ज़्यादा चलती नहीं. इनफैक्ट आप स्टेटिस्टिक देखोगे ना तो मोस्ट बिजनेसेस डोंट सर्वाइव बियॉन्ड 30-35 years. तो इट इज़ ओनली अ थ्योरी या ओनली टेक्निकल बात है कि बिजनेसेस की लाइफ परपेचुअल होती है, राइट? एक इंसान का करियर 35-40 साल का होता है और एक बिजनेस की लाइफ भी 35-40 साल ही होती है ऑन एन एवरेज. सो हाउ आर बिजनेस इज एबल टू स्ट्रेंथन दैट और इलोंगेट दैट टाइम पीरियड कि जब आपका एक पॉइंट पे आप आ गए, जब आप हाई ग्रोथ पे आ चुके हैं, तभी आपको सोच लेना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है.
Do I have to enter into a new geography? Do I have to enter into a new product line? Do I have to enter into different versions of the same product? And उसको multiple iterations करेंगे, तब उसमें से कोई एक आपका काम करेगा. So that's how businesses, and that's the reason why we say that businesses which keep on innovating and researching, they are given higher value. क्योंकि जितना innovation होगा उतना probability of lengthening that life cycle is higher. अगर आपने innovate ही नहीं किया तो आप उसको लंबा करेंगे कैसे? आई थिंक आई हर्ड एक्चुअली मिस्टर जेफ बेजोस को किसी इंटरव्यू में बोलते हुए, ही सेड कि हर बिजनेसेस डाई आउट करते हैं, अमेजोन भी एक दिन डाई आउट करेगा ही. आवर जॉब इज जस्ट टू प्रिवेंट इट एंड पुश इट लेटर. So I didn't hear Jeff Bezos saying it, but I'm glad that we are on the same page. वी सी कि बहुत सारे जो नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, वी कैन टॉक अबाउट जो .com बबल आया था इनिशियल अर्ली 2000s में. तो उस टाइम पे हर कंपनी जो .com लगा रही थी या लेट्स से इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड थी, उनको बहुत हाई वैल्यूएशंस मिल रहे थे. तो उस ग्रोथ स्टेज में बहुत ज़्यादा हर कंपनी को हाई वैल्यूएशंस मिल जाते हैं, बट जैसे ही दिखते हैं कि इंडस्ट्री मेच्योर हो रही है तो वैल्यूएशन कोलैप्स कर जाता है. ये सब जनरली क्यों होता है? बिकॉज वी हैव सीन .com is an exaggeration of the whole problem, but हर टेक्नोलॉजी में we see maybe it's in AI अभी, but क्यों होती है ये सर? See, I don't see a problem in that because we've discussed the same solution or the answer to this in parts. I'm glad that you brought it up. Let's put them all together. So जब ये .com bubble आया, so वो bubble क्यों है? .com तो आज भी चल रहा है. You have a website, I have a website which ends with .com, right? It was something new. So a lot of people were entering into that space. Now, at that time, people didn't know which of these companies will be successful, right? तो मैं ये तो expect कर सकता हूँ कि आपका business succeed होने का probability कितना होगा. But I will always have that, like I said, nobody has that crystal ball, right? So because you are investing into something new, I am saying that yes, this is the future. So let me put my money on you. So only people who were risk takers said that yes, this is something new, let's put our money on it. Everything got valuation. All of those companies which were into .com got valuation. But of course, everybody will not have that share of the pie because if सब लोग आज भी successful होते तो सबको मालूम है ना कि ये success जो है वो हर समय नहीं चलेगा. Ultimately, economies of scale will come in. और जो हम लोग normal economics में पढ़ते हैं ना, super normal profits will converge towards normal profits, right? So जिन कंपनीज ने अच्छा काम किया उनको लॉन्ग टर्म में वैल्यू मिली. बाकी जो रिस्क टेकर्स थे, रिस्क टेकर्स वो लोग होते हैं जो इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, राइट? उन्होंने पैसे गवाए. एवरीबडी डिड नॉट लूज मनी. अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जिनको लग रहा था कि .com में पैसे लगाओ, दे लॉस्ट मनी एंड ये उनकी पेनल्टी है, राइट? सो टुडे आज हमको मालूम है कि AI अच्छा है. मुझे नहीं लगता AI खत्म होने वाला है, राइट? बट येस, everybody is trying to use AI as a buzzword. So अब जो uninformed investor है वो उन कंपनीज में पैसे लगाएंगे तो they will lose again. बट जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है उनको मालूम है कि मैं अगर 10 AI ड्रिवन कंपनीज में पैसे लगाऊंगा तो 2 ही सक्सेसफुल होगा, बट मुझे नहीं पता इनमें से कौन 2 सक्सेसफुल होगा. तो इफ आई वॉन्ट टू अर्न अल्फा फ्रॉम AI, आई विल हैव टू पुट माई मनी इन टू 10 कंपनीज. 8 में पैसे गवाऊंगा, 2 में बनाऊंगा, बट 2 में जो बनाऊंगा वो 8 के पैसे को रिकवर कर देगा मुझे. सो हम लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि 10 में से 2 ही सक्सेसफुल हुआ. हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो 8 सक्सेसफुल हुए और 8 जो फेल हुए और 2 सक्सेसफुल हुए, those 2 compensated for the loss of the 8, right? So this is going to happen every time and it's good for the ecosystem. अगर वो नहीं होगा तो फिर innovation आएगा ही नहीं. Risk takers are important basically. Absolutely. So we can say that in any industry, first there's competition, then there's maturity, Yes. and then the last survivor. Absolutely. So a lot of people will enter and you're right. Some will only succeed, not all will succeed. Okay, so moving on. आजकल करेंसीज की वैल्यूएशन की बहुत बात चल रही है. So how do that come into play? Because बहुत weird से टॉपिक है ये. How can you value currencies? देखो, इतना बड़ा वैल्यूअर तो मैं नहीं हूँ, राइट? आप लोग एयर और करेंसी के वैल्यूएशन मुझसे करवा रहे हो, बट वॉट एवर लिमिटेड आई नो, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. सो करेंसी की एक तो प्राइसिंग होती है, राइट? और एक उसकी वैल्यूएशन होती है. सो जब हम लोग करेंसी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, इट कैन बी अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज एंड आई कैन ओनली टेल यू वेरी ब्रीफली थियोरेटिकली कि वो वैल्यू कहाँ से आएगी. द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल बी डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी, राइट? सो आज अगर यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी. यूएस की इकोनॉमी वीक है तो करेंसी की वैल्यू वीक होगी.
इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे इन्हांस हो रही है, जैसे जैसे ग्रो कर रही है, वैसे वैसे ओवर अ लॉन्गर पीरियड इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ रही होगी. So one derivative factor is the overall performance of the economy. Second derivative factor is the acceptance of that currency against other currencies. कि आज अगर यूएस की जो यूएस डॉलर है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड करेंसी एंड इट्स एन एक्सेप्टेड करेंसी बिकॉज द इकोनॉमी इज गुड, राइट, बट बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सेप्टेड तो उसकी ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है एंड उस ट्रेडेबिलिटी की वजह से उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी फर्दर इनहेंसेस. सो वन इज द फंडामेंटल फैक्टर विच इज द इकोनॉमी, द सेकंड इज द ट्रेडेबिलिटी फैक्टर विच इज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट करेंसी. एंड इन दोनों चीज़ को मिला करके, एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स दैट वुड अंडरलाई दीज टू फैक्टर्स, इससे एक करेंसी की वैल्यू चेंज होती है. यूजुअली हम लोग आज आप व्हेन यू से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर, I don't know what's the value of the US dollar. We only look at value of US dollar vis-a-vis any other currency. It could be a Japanese yen, it could be an Indian rupee, it could be a GBP, it could be Swiss franc, right? So here again, every currency is valued against other currency basis these two broad underlying factors, and then of course there could be other underlying factors as well, right? So US economy बढ़ा, Indian economy ज़्यादा बढ़ा. So again, even if both the so ideally what will happen, the rupee will strengthen against the dollar, right? Yeah. Only relatively, not overall. So that's the broad perspective, but then there's limited understanding that I have around it. Okay, sir, moving on to a subject that you are studying on, which is startup valuation. Sir, I have myself tried startup valuations my internship ke time pe, and it was one of the most I would say complicated thing I have done, because you can value a matured company or even a growing company जिसका आपको cash flows पता है, जिसका आपको industry पता है. But the startups which I was valuing during my internships had zero revenue. उनकी TAM किसी को पता नहीं थी, उनकी future किसी को पता नहीं थी. तो it is a very complex exercise and आप उस पर PhD कर रहे हैं पूरे startup valuation में. So you are doing a very unique thing, I think. So can you speak about it something? देखो, let me make your life easier, right? So अगर आपको स्टार्टअप की वैल्यूएशन करनी है, रिमेंबर द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड, इट्स अबाउट परसेप्शन, राइट? इन स्टार्टअप्स की, किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई अपनी इंडिपेंडेंट यूनिक वैल्यू बताना इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, राइट? आप किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन कर क्यों रहे हो? अगर मुझे ये जानना है कि भाई व्हाट्स द वैल्यू ऑफ माई स्टार्टअप, राइट? मैंने एक बिजनेस को कल स्टार्ट किया, मुझे लगता है बहुत अमेजिंग बिजनेस आइडिया है, राइट? तो उस वैल्यू को लेके मैं करूँगा क्या? It is only going to be relevant when there's a person who's going to invest into my company. So let's say you want to invest into my company. अभी as an informed investor, हर कोई तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर नहीं सकता. Generally VCs. Normally VCs करेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स करेंगे. अब एंजल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बेट लगा रहे होते हैं कि भाई मुझे विकास पसंद है, मुझे विकास के आइडिया पे भरोसा है, मुझे विकास पे भरोसा है, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, लेट मी ट्राई टू सपोर्ट हिम, एंड अगेंस्ट विच नथिंग शुड गो फॉर चैरिटी. तो उसने नेगोशिएट कर लिया कि यार विकास, तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बट 1 करोड़ के बदले में मुझे 10% का स्टेक दे दो. मुझे 1 करोड़ चाहिए और मुझे लगता है 10% स्टेक देने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट? तो मैंने 1 करोड़ की वैल्यू, मैंने 1 करोड़ रुपए उनसे ले लिया, 10% स्टेक दे दिया. कंपनी की वैल्यू कितनी हुई? 10 करोड़. 10 करोड़, है ना? Oh, sorry. 1 करोड़ के अगेंस्ट पे 10% दे दिया. हाँ. तो ये वैल्यू किसने डिराइव करी? Yeah. ये किसी वैल्यूअर ने तो नहीं करी, राइट? वैल्यूएशन की डेफिनेशन ही ये बताती है कि एक प्राइस है जो कि अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में ओपन मार्केट में अगर ट्रांजैक्ट हो जाए तो वही उसकी फेयर वैल्यू है. तो हमने फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर ली. इसमें विकास गोयल एज अ वैल्यूअर क्या करेगा? कुछ नहीं, करेक्ट? एक दूसरा इंसान है जिसको लगता है कि नहीं यार, मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं, पता नहीं ये क्या कर रहा है, इस बिजनेस में क्यों घुस रहा है, मैं तो नहीं लगाऊंगा इसमें पैसे, मुझे तो लगता है बेकार है. तो उसके लिए उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 0, राइट? तो valuation of a business is going to be about perception. Let's stick to that. And valuation of a startup is dependent a lot upon the person, I think, जितना मुझे आपकी बातों से समझ में आया. It's the jockey and the horse, right? Now, of course, मैं जो startups की valuation कर रहा हूँ, वो valuation का background ये है कि there's a lot of money flowing behind startups at angel level, private equity level, VC level, and so on. So, can we have some more standardized frameworks to value startups? I am not there to value a particular startup as a whole. The idea is to only help the ecosystem come up with more objective framework so that failure rates थोड़े से कम हो जाए. That's the intent, that's an endeavor. I don't know whether that will happen or not.
but I think that's my responsibility to do and to do for the ecosystem, so I'm trying to do that. सिंस यू मेंशन द वर्ड फ्रेमवर्क, उससे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ. लेट्स से कोई एवरेज आदमी है एंड उसे कोई डील करनी है, तो कोई वो बेसिक अच्छा फ्रेमवर्क अपने माइंड में रख सकता है कि ज़िंदगी में अगर कोई भी डील करे तो अगर मैं इस फ्रेमवर्क के बेसिस में किसी एसेट को या फिर कोई भी डील को अपने माइंड में रखूँ तो आई विल गेट अ बॉल पार्क ऑफ अ करेक्ट फिगर. नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए उन्हें. नहीं करना किसी भी एवरेज आदमी को ये नहीं करना चाहिए. Okay. आई थिंक एक एवरेज डील मतलब आई थिंक दे शुड ऑलवेज रिजॉर्ट टू प्रोफेशनल्स फॉर दोज काइंड ऑफ डील्स, राइट. मतलब this brings me to a very interesting asset class, which is, let's say, crypto. And I know a lot of people have lost money into cryptocurrencies or into bitcoins and so on, right? Most of them are uninformed investors. तो अब क्या है कि I don't know if there are sufficient frameworks around to value those cryptocurrencies. It's an asset where it has some value for sure, and I am not qualified enough to do the valuation of a cryptocurrency. So कोई अगर मुझसे पूछता है तो मैं उसको ये बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास में 1, 1.5, 2 लाख जितने भी पैसे आपके पास में है, जिसको आप खोने से आपकी नींद नहीं उड़ेगी, you have surplus money and you want to test whether that surplus money is going to give you more money or not, and you will not lose your sleep if you lose that money. उतना डाल दो, फिर देखो क्या होता है, राइट. सो कोई भी एवरेज पर्सन को ये फ्रेमवर्क यूज़ करना ही नहीं चाहिए. देर आर अ लॉट ऑफ methods and ratios and frameworks which are available in the market, but I think you should always research well. इतना सस्ता होना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी. Correct. ओके सर, मेक सेंस. तो सर वी हैव सीन पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस एकदम रैली कर रहे हैं, एक रोलर कोस्टर पे हैं. सर ऐसा पर्टिकुलरली कोविड के बाद क्यों होता है, या फिर ऐसा कोई इंस्टेंस है जो हमेशा होता है उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस एक रोलर कोस्टर पे रहते हैं? देखो, रोलर कोस्टर तो इसलिए है बिकॉज द प्राइसेस आर गोइंग अप ऑल्सो, डाउन ऑल्सो, Yeah. राइट. there's a very long answer to this, right? I'll try and see कितना छोटे बुलेट पॉइंट्स में इसको डाल सकते हैं. So एक हम लोग ये देख रहे हैं कि there's a lot of turbulence globally, right? And COVID is just a milestone. I don't think it's related to COVID. It's just a milestone that we see. So most of the countries have now started looking inwards, राइट. पहले आप देखो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बहुत फोकस होता था. आजकल सब लोग कह रहे हैं कि यार नहीं, मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करूं पहले, राइट. वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स चाइना, वेदर वी आर ऑल ट्राइंग टू सी कि लेट अस ट्राई टू लुक एट आवर इंटरेस्ट्स फर्स्ट, राइट. और उसकी वजह से हम लोग ग्लोबल ट्रेड की जगह पे सब्सिडीज, आप देखो यूएस भी बहुत सब्सिडीज दे रहा है, इंडिया भी बहुत सब्सिडीज दे रहा है. तो वी आर ऑल ट्राइंग टू लुक एट इंडियन कंजम्पशन स्टोरी और रेस्पेक्टिव कंजम्पशन स्टोरीज, राइट. So one of the reasons why the Indian markets are going up is because we are saying that there are various parameters which says that Indian businesses, Indian economy is expected to grow, and we are going to grow in terms of and there's something called GDP to market cap multiple. Okay. So उस मल्टीपल पे हम लोग के पास बहुत रूम है और ग्रो करने का, राइट. हमारा पर कैपिटा इनकम अभी काफ़ी लो है, तो वो भी ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं. बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वो वहाँ पे ऊपर जाना चाहिए. एंड देयरफॉर there's a set of factors which is driving the markets up, which I think is reasonable from a long term perspective. एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास में सरप्लस मनी आ गया है, राइट. हमने देखा कि उस समय हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कम थे, तो लोगों को लगा कि यार घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओ, तो SIPs में पैसे जाने लग गए. अब SIP एक बहुत इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है, बिकॉज आप एक बार डाल देते तो जनरली सब लोग वापस नहीं निकालते ना, पैसा जा रहा है. तो अगेन द मार्केट, पैसे मार्केट में घुस रहे हैं, एंड देयरफॉर द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट इज गोइंग अप. सो अब लोगों को लग रहा है कि यार जब मार्केट में इतने पैसे आ ही रहे हैं, तो लेट्स टेक आवर कंपनीज फॉर एन IPO. द मार्केट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब इट बिकॉज द मार्केट इज गेटिंग मोर एंड मोर लिक्विडिटी. तो जब वैल्यूएशंस हाई हो रहे हैं और आपने और कंपनीज उसमें इन्फ्यूज कर दिया मार्केट में, तो क्या होगा, आपका वैल्यूएशन रीजनेबल होने के चांसेस है, बिकॉज द सेम मनी इज नाउ चेजिंग मोर कंपनीज, राइट. पहले अगर 10,000 कंपनीज थे, वहाँ पे अभी 12,000 कंपनीज हो गए, तो मार्केट कैप स्प्रेड हो जाएगा, राइट. तो दोज आर फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच द मार्केट्स माइट बी गोइंग अप. At the same time, there's a lot of factors which is बीच में लगता है कि नहीं, there's this bubble, let's short sell. So I'm not much of a market expert, to be very honest, right? I can only talk about very broad naive fundamentals. मैं अपने आप को market expert treat नहीं करता, but मुझे लगता है कि external factors, market factors, foreign institutional investor factors जो होते हैं, उसकी वजह से भी market काफ़ी नीचे आ जाता है. So those are short corrections, but overall तो I think market is on a positive trajectory only, which is fair thing.
So, sir, we also see that the Indian markets are trading at a very high multiple than their other developing nations. So, let's say the Nifty versus compared to any other developing nation. So, one of the reasons may be the GDP, which you just mentioned. Yeah. So, what are the other reasons why this See, is happening? my fundamental says that it's primarily that I don't track many other factors, right? So higher multiples are usually given based on high growth expectations. So if I had to justify high multiples, I would say it's the high growth expectations. For example, आप अगर बहुत सारे स्टडीज को देखो, so there was a LinkedIn post that I had put up a couple of months back, जिसके अंदर में हमने ये ट्रैक किया कि what are the economies which are expected to outperform other economies over the next 30 years. And it's still only India which is featuring in that list. And these studies have been conducted by extremely reputed organizations like Goldman Sachs and Ernst & Young. And these studies have been true since 2003 till now, right? So a slightly more premium than the global counterparts is natural for India. We are expected to have it for the next few years for sure. But I think that will probably partly answer your other question as to why markets come down. बीच बीच में नीचे आना ज़रूरी है, राइट? लिक्विडिटी विड्रॉ करना है, पैसे निकालने हैं, लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. इट्स लाइक फ्लाइंग अ काइट, कभी आप ढील दे रहे हो, कभी आप टान रहे हो. Makes sense. So talking about M&A activity, I have personally observed कि M&A activity थोड़ी news में ज़्यादा दिख रही है इंडिया में. So firstly, what is fueling all this activity? And second, वो सब में valuation होती कैसे? Because I find it a little complicated to understand being a finance student. So any growing economy is likely to have a lot of M&A activities, right? Let's understand 2-3 important drivers. So आप देखो पिछले 20-22 साल में India has become a very educated economy, right? I mean, people who've been born in late 70s, early 80s, तब से एजुकेशन पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस रहा है. सो थिंक ऑफ द प्रीवियस जनरेशन जो कि एंटरप्रेन्योरियल जनरेशन थी. ऑल द बिजनेसमैन हु सेट अप मिड-साइज्ड बिजनेसेस, their next generation don't want to carry on with those businesses, right? So now it's natural that, and मैंने पहले ही बताया आपको कि 30-35 साल की एक बिजनेस की लाइफ होती है, correct? So what will happen to those businesses? Now जो बहुत ही छोटा होता है, एक brick and mortar store है, उसको तो आपने बंद कर दिया, but what about a factory, right? So we see a lot of opportunities where the new age businesses would be willing to acquire the earlier businesses, जहाँ पे उनको एक टीम मिलती है, उनको एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मिलता है, उनको एक रेवेन्यूज मिलते हैं, उनको एक क्लाइंट बेस मिलता है, एंड यू कैन सेव दोज बिजनेसेस फ्रॉम डाइंग डाउन. So we see a lot of space. In fact, we have ourselves ventured into M&A advisory, and we are seeing a lot of requirements coming in from that front. And news में तो आपको बड़े M&A activities दिख रहे हैं. There's a lot of mid-size, small-size M&A activities that's happening as well, जो कि न्यूज़ में आती नहीं है. As the economy is growing, of course, जहाँ हमारा investment ecosystem जो mature हुआ है, so वहाँ पे companies have started realizing that inorganic growth is as good as organic growth, right? So therefore, it's absolutely fair for them to start acquiring other companies. So ये जो acquisitions होती है, इनकी कोई मतलब from an industry perspective, आपके क्या insights हैं about these valuations that are happening in an M&A activity? So I have a very interesting story for this, right? We all use WhatsApp. Yeah. Right? And WhatsApp was acquired by Facebook. Yes. Do you know the value at which WhatsApp was acquired? Not sure, few billions. It was about $17 billion. Wow. Right? Now, at the time of acquisition that happened in around 2013, the revenue of WhatsApp was about $10 million only. $10 million. Huh? And it had reported a loss of about $130 million. It had 400 plus million customers. Now, we've never paid to use WhatsApp as an individual user. Never. Correct? So at that time, WhatsApp's revenue model was free for the first year and then $1 every year. Now you see 400 million users and only $10 million of revenue. So therefore, only 10 million out of 400 million users were paying. So clearly WhatsApp was not driving revenue, correct? Now Facebook acquired this company for $17 billion. It was a cash and stock deal. Now just imagine, why would Facebook pay $17 billion? If you do a very quick math, if WhatsApp's revenue would have been, even if WhatsApp had the entire population of this globe as its customer, right? तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 7 बिलियन. आज 7.3 बिलियन है. तो अगर WhatsApp इस धरती के हर पर्सन से
$1 ले लेता तो रेवेन्यू 7 बिलियन ही जाता ना, राइट? और रेवेन्यू से तो कम ही होगा प्रॉफिट. यस, आप रेवेन्यू का कितना मल्टीपल दे दोगे? नॉर्मली हम लोग 10, 15, 20, 25, 30 का अर्निंग्स मल्टीपल लगाते हैं, राइट? सो कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी वैल्यूअर व्हाट्सएप को $17 बिलियन पे वैल्यू नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से, राइट? एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, दिस इज अनवेरीफाइड बट व्हाट वी सी इज गूगल हैड बिड टू अक्वायर व्हाट्सएप फॉर अबाउट 1 बिलियन, बट फेसबुक अक्वायर्ड इट फॉर 17 बिलियन, राइट? वाई वुड फेसबुक पे 17 बिलियन? सो जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो मुझे ये दिखा कि फेसबुक, बिकॉज इट वॉज अ लिस्टेड कंपनी, इट वॉज ऑलरेडी लिस्टेड बाय द टाइम इट अक्वायर्ड व्हाट्सएप. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, आप जब उसको इवैल्यूएट करो तो उसमें उन्होंने व्हाट्सएप की वैल्यूएशन लिखी, एंड व्हाट्सएप की वैल्यूएशन लिखी 1.5 बिलियन. 15 बिलियन का सिर्फ गुडविल रिकॉर्डेड है. गुडविल क्या होता है? प्राइस दैट यू आर पेइंग ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी. सो इसका मतलब फेसबुक ने भी व्हाट्सएप की वैल्यूएशन 1.5 बिलियन ही लगाई, एंड जो मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि गूगल 1 बिलियन पे खरीदने को रेडी है एटसेट्रा, वो उसी रेंज पे चल रही है. तो फेसबुक 15 बिलियन क्यों दे रहा है? प्योरली फॉर गुडविल. हाँ, एंड ये गुडविल क्या है? सो ये गुडविल ये है कि अगर मैं व्हाट्सएप को खरीदता, आप व्हाट्सएप को खरीदते, तो आप 1.5 बिलियन ही देते. वो व्हाट्सएप की स्टैंड अलोन वैल्यू है. फेसबुक के लिए उसकी वैल्यू 17 बिलियन थी. अब ये कैसे आ रही है? सोचो. सो व्हाट्सएप आपको क्या दे रहा है? आपको डेटाबेस दे रहा है, आपको यूजर कॉन्वर्सेशन दे रहा है, इनक्रिप्टेड है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत हिडन है, बहुत ट्रू है, बहुत मिथ है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक ऐप है जिसपे आप सारे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, राइट? आपके सारे ग्रुप्स हैं, सारे कॉन्वर्सेशन है, सब कुछ है. आपके सारे कॉन्वर्सेशन, पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप पे सेव्ड होता है, राइट? तो गूगल आपको जीमेल क्यों दे रहा है पिछले 20, 25, 30 साल से? यू आर यूजिंग अ जीमेल फॉर फ्री, Yes. राइट? यू आर यूजिंग गूगल मैप्स फॉर फ्री. आप गूगल क्रोम फ्रीली यूज कर रहे हो, आप प्ले स्टोर फ्रीली यूज कर रहे हो, आप यूट्यूब फ्रीली यूज कर रहे हो. They get our data. क्यों दे रहे हो, राइट? व्हाई इज गूगल गिविंग यू ऑल ऑफ दीज एसेट्स फॉर फ्री? Because ultimately Google is tracking your own information, and it is using that information, regulated, unregulated, captured, not captured, whatever, but it is using that information to drive revenue. Facebook के पास में, Facebook भी फ्री है, राइट? बट Facebook और Google के अंदर में सिमिलैरिटी क्या है? एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज. सो गूगल के पास में डेटा का इतना सारा सोर्सेज था, फेसबुक के पास में सिर्फ एक सोर्स था, खुद फेसबुक. सो फेसबुक को ये समझ आया, ये मेरा व्यू है कि फेसबुक को ये समझ आया कि मुझे यूजर्स के बारे में अगर इतना डेटा जनरेट करना है जितना गूगल के पास है, तो वो डेटा जनरेट करने में मुझे $20 बिलियन से ज़्यादा लग जाएंगे बॉस. तो अगर मैं व्हाट्सएप को खरीदता हूँ तो एक तो मेरा कंपटीशन कम होगा, बिकॉज सोशल मीडिया में है दोनों, राइट? एंड दूसरा, मुझे डेटा का एक्सेस मिलेगा, एंड वो एक्सेस इज अ कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ वैल्यूएशन एक्सरसाइज, है ना? और आज तक जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में फेसबुक ने उस गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है. 2013 की बात है, हम लोग 2025 में बैठे हैं, करेक्ट? सो इन एनी M&A एक्टिविटी द वैल्यूएशन इज ड्रिवन बाय द गरज, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, राइट? कि भाई मुझे इसको अक्वायर करके क्या मिलेगा, मैं इसको इतने पैसे क्यों दूं. तो एक होती है कंपनी की स्टैंड अलोन वैल्यू जो आप कभी भी करोगे, और एक होती है उसकी एक्विजिशन वैल्यू कि भाई हम इसको अक्वायर कर रहे हैं तो मुझे सिनर्जीज क्या मिलेंगी. वो सिनर्जीज की जो वैल्यू है, सिनर्जी हम लोग M&A में यूज कर लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर्म में वो गुडविल बन के आ जाता है कि भाई सिनर्जीज बाद में रियलाइज होगी, इसका लिए अपने इतना प्रीमियम दे दिया, दैट्स द गुडविल पीस. सो एनी M&A इज यूनिक, एंड इट इज द वैल्यूएशन वुड बी ड्रिवन ओनली बेस्ड ऑन द अक्वायरर टारगेट सिनर्जीज. सो आपके आंसर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग का डेटा कितना वैल्यूएबल है, बिकॉज एज नॉर्मल पीपल हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग की जो डेटा है उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज कितना पे कर रही हैं. बहुत वैल्यूएबल है. आपको अगर शॉप लेना है तो आप जाइए google.com/takeout पे, आपको पता चलेगा कि आपका कितना डेटा गूगल आपके लिए सेव करके रखा है. सो ऑफ लेट all the regulators have pushed the big tech companies to be more transparent about how the data of the users are captured. So अगर आप Instagram पे जाओ तो आप वहाँ पे अपना सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हो, Facebook से कर सकते हो और Google से भी कर सकते हो. तो if you go to this hyperlink called google.com/takeout after you've logged into your Gmail account, your Google account, it will tell you every video that you've watched, Google searches that you've done, right? Websites visited. I mean, practically every data that Google has about you. And companies buy this data for a lot of money. So yeah, it depends on how that is being sold. I don't think that Google will just sell that data to somebody. But yes, I mean, of course, it's traded in a very regulated and structured manner. Data is valuable, no doubt about it.
Okay, so moving on, we noticed while researching about your firm कि you also provide IPO advisory services, and given that it's an IPO frenzy in India, आप उसके बारे में तो explain कर सकते हैं? What kind of services that valuation firms provide, or what services you do? So IPO advisory has been a transition from valuation. So it was natural for us to expand our services beyond valuations. When we say IPO advisory, it's more than what we do around valuation. So when a company is going for an IPO, there are so many things that they have to do, right? I mean, they have to put their house in order because आप एक private firm से एक public firm बनने वाले हो तो आपको बहुत transparent होना पड़ता है. So you have to fix your HR, you have to fix your IT, you have to fix your contracts. आपको Indian GAAP से Ind AS में move करना पड़ता है, compliances बहुत करने पड़ते हैं, SOPs बनाने पड़ते हैं. तो वो सारी चीज़ों पे बहुत effort लगता है, and we are doing some of those activities. We are more positioning ourselves as valuation advisors. So क्या होता है कि when a company is going for an IPO, usually वो कई जगह पे हमने देखा है कि वो थोड़ा सा short sightedness भी आ जाता है कि भाई अभी हमारा इतना revenue IPO में गए तो value unlocking हो जाएगी. But then what about after IPO? You see a lot of companies are losing value after the IPO. You asked about Lenskart in a few moments back, right? So if I was an advisor, I am not, but if I was an advisor to Lenskart, I would ask Lenskart to put a lot of money on the table for the investors to come in, for the incoming investors, right? So IPO is not the end of the company. So हम लोग उनको advise करते हैं कि आपको कितना IPO प्राइस लाना चाहिए so that you remain an attractive company. आपका value unlocking हो गया, but the promoters will still remain the shareholders of the company, right? So you will, if the value of the company increases further, your worth will also increase. So what are those factors which will help you drive your valuation? Sometimes it's about communication. So there's a client of ours जो कि बैटरीज में डील करते हैं. इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बट इंटरेस्टिंगली दे नेवर कम्युनिकेटेड कि जो बैटरी वो बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट 100% रिसाइक्लेबल है. देयर इज ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग फ्रॉम एन ESG परस्पेक्टिव, बिकॉज आप कोई भी तरह का वेस्ट इन्वायरमेंट में छोड़ नहीं रहे हो, राइट? FIIs might be attracted to it. FIIs, अरे even normal investors, right? ये आप कम्युनिकेट करो ना, बिकॉज एवरीवन डजंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस एज वेल. तो आपकी कम्युनिकेशन से वो चेंज हो जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग दैट हैपेंस कि भाई आज आपकी इतनी बड़ी टीम है, बट इज दैट टीम कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी, इज दैट टीम कॉन्शियस अबाउट कॉस्ट्स? तो वो कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट होती है, उससे वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है. समटाइम्स कंपनीज आर नॉट गिविंग इनफ वैल्यू टू कॉर्पोरेट गवर्नेंसेज. तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने से आपका वैल्यू कैसे इन्हांस होता है, right? Sometimes your revenue contracts are not structured in a manner that will drive revenue for you. We have Byju's example. One of the important things that Byju's missed was how the revenue arrangements, how the revenue recognition was done. It was one of the things that affected the company's future. Of course, there were a lot of operational factors as well. So we try to help companies in terms of how they can enhance their value in the long run, not only during IPO but even beyond IPO. So that's what we are trying to do. Of course, it's work in progress, but let's hope that we'll be able to. So during IPO जो आपने बोला जो factors रहे होंगे that are very different, and जो बाद में factors आएंगे that are very different. जो आपने let's say 300 factor अपने starting में mention किए थे, तो वो 300 factors do they come into picture during the IPO, or like it's a whole process? Those factors are there, right? Those factors are always there. Those would be applicable to whether it's a private company or a listed company, right? Some of it might not be applicable to some companies under some circumstances. Liquidity, if it is one of the factors, then it is applicable to a listed company, not applicable to a private company because it's not liquid, right? So those factors are usually used across the board. So अगर हम 300 की बात करें तो 250 के आसपास फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमेशा ही चलेंगे, 50 ऐसे होंगे जो कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक निकल जाएंगे. Sir, we also talk a lot about the IPO bands, the price on which the IPO comes. So sir, एक myth है या फिर कुछ है कि ये बहुत ओवर वैल्यूड है आज के दिन पे. So सर, इसको करेक्ट वैल्यू मिलता है या फिर इसके बिहाइंड के क्या स्टोरी है? So normally, of course, there's a lot of regulation that has also come in. We spoke about that some time back. So IPO की जो प्राइसिंग होती है, it is usually market determined. So आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में कंपनी IPO की जर्नी में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए, कभी शेयर इशू किया है, कभी बायबैक किया है, कभी फाउंडर ने QIP रेज कर, प्राइवेट इक्विटी रेज कर लिया है. सो दे रेज इट एट अ सर्टन वैल्यू, एंड देन जब वो IPO में जा रहे होते हैं तो वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाता है. नाउ अगेन देर आर अ लॉट ऑफ मार्केट विजर्ड्स आउट देयर जिनको लगता है कि इट्स ओके टू डू दैट, राइट? सो जो IPO की प्राइस
एंट्री प्राइस होती है जो कंपनी डिफाइन करती है कि भाई हमारा ये प्राइस बैंड होगा, दैट इज यूजुअली डन बाय द मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. उन्हें ये लगता है कि ये प्राइस पॉइंट मार्केट में एंटर करने के लिए अट्रैक्टिव होगा. यूजुअली दैट्स नॉट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. Okay. Because last couple of years we've seen a lot of companies coming in with price bands which are significantly different from the earlier prices. So now more and more regulations are coming in to ask for a justification of that price band. Correct? So very simply speaking, ideally होना क्या चाहिए कि आपने जब प्राइवेट लेवल पे, जब आप प्राइवेट थे तब आपने अपनी एक वैल्यूएशन करी. जब आप उस प्राइवेट मोड से पब्लिक मोड में जाएंगे तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम आपको मिलना चाहिए. ए. बी, जब आप प्राइवेट थे, जब आप आईपीओ में आ रहे हो तो आपने क्या किया, या तो ऑफर फॉर सेल है या नया फंड इन्फ्यूज हो रहा है. तो जो नया फंड इन्फ्यूज होगा, अगर नया फंड इन्फ्यूज हो रहा है, सो देन यू आर गोइंग टू यूज दीज फंड्स टू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, एंड दैट इन्वेस्टमेंट शुड ड्राइव मोर प्राइस, मोर प्रॉफिट फॉर यू एंड देयरफॉर मोर वैल्यू फॉर यू. सो वो एक एंटिसिपेशन होना चाहिए. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन दोज आर द ओनली टू फैक्टर्स broadly that should be differentiated, या that should be different between pre-IPO transactions and IPO price. अब इसके बाद में, because it's very difficult at the end of the day, it's a subjective exercise, तो लोग हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि like I said, leave enough money on the table for the incoming investors, right? So आज रिटेल इन्वेस्टर्स जब आ रहे हैं तो उनके लिए आपने अगर टेबल पे वैल्यू छोड़ा ही नहीं, आपने एग्जिटिंग जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं सारी की सारी वैल्यू उनको ही दे दी, so it's not great corporate governance practice at the end of the day, right? So you should have sufficient money on the table, otherwise तो पोस्ट आईपीओ आपका वैल्यू गिरना है, कंपनी की रेपुटेशन खराब होनी है. तो वही हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेट करें. बाकी ऑफ कोर्स वी आर नॉट द ओनली स्टेक होल्डर्स, लाइक आई सेड बहुत बिग विजर्ड्स होते हैं तो सबकी सुननी पड़ती है कंपनी को. Okay, sir. Moving on. While you were researching about you, we noticed that you have also authored 3 to 4 books on valuations. And when we searched books on valuation, the first name, of course, came of the OG Ashwath Damodaram sir. उसके बाद जो शॉपिंग के सेक्शन में जो बुक्स के नाम आ रही थी वो आपके ही बुक्स थे. तो सर आपने इतने सारे बुक्स क्यों ऑथर किए एट सच अ यंग एज? क्यों ऑथर किए? सो मैं जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, तो उस समय ब्लॉग्स बहुत नया कॉन्सेप्ट आया था, राइट? सो मैं बहुत नोट्स बनाने की आदत थी मुझे. सो होता क्या था कि एंड व्हेन आई वाज इनटू ग्रेजुएशन, सो लाइक आई टोल्ड यू कि मैं पूरे दिन बाहर ही रहता था, राइट? सो सुबह 5 बजे घर से निकलता था, रात को 10 साढ़े 10 बजे घुसता था. सो आई डिडंट हैव सफिशिएंट टाइम एट होम. सो उस समय इंटरेस्टिंगली एक आदत लग गई थी कि आई स्टार्टेड अ ब्लॉग, एंड उस ब्लॉग पे और कुछ नहीं होता था, आई यूज्ड टू जस्ट राइट माय ओन नोट्स. तो वो लिखने की आदत आई थिंक वहाँ से आ गई थी. सो basically it was, my first book was a collection of my notes on valuation, and then the authors, the publishers liked it. I got some good feedback. Of course there were corrections also that were required. Every book there would be some errors, no doubt, right? So but then it was well taken, and कहीं ना कहीं एक motivation आया, लोगों ने बोला कि नहीं उनको help हुई है book लिखने पे, and then publisher का भी push आया. So then the second happened. So first book had 3 editions, right? But then that book was primarily aimed at the registered valuer exam. Then the second book was more towards Indian practicing valuers. And now the third book that has come, ये taxman की है. तो because second book को काफ़ी टाइम हो गया था, तो then they said कि तीसरी बुक लिख लीजिए. इसके बीच में कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट ने बोला कि उनका स्टडी मटेरियल बना दीजिए. So yeah, मतलब it, like I said, one thing led to the other. It's not that I wanted to write 4 books. आर यू प्लानिंग अ स्ट्रक्चर्ड बुक वैल्यूएशन के ऊपर? बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं पिछले 2 साल से वैल्यूएशन सीख रहा हूँ, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है, बिकॉज कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स है नहीं ऐसा, खासकर इंडिया में इन अ लो कॉस्ट मेथड, जिसमें एक स्टूडेंट अच्छे से सीख पाए. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है पर्सनली मुझे. सो देखो, एज फार एज एन ऑथर, आई हैव every edition is aimed at writing a structured book, and it is always going to be a journey. सो मुझे लगता है कि जो लास्ट बुक मैंने लिखी है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है. इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट आई एम नाउ गेटिंग टू हियर फ्रॉम यू कि नो, इट may not be as structured. So yes, No sir, not from your opinion. I am saying कि let's say कोई इंसान जीरो से वैल्यूएशन सीख रहा है. You said your books were from a registered valuer perspective. No, so that was the first book. Okay. The latest one has been written, which is fairly elementary, and anybody who's starting general, valuation journey should be able to do it. And then of course, see, as far as books are concerned, matlab I have had the privilege of meeting Mr. Damodaran, interacting with him, attending his classes, and
सो उनके बुक्स तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हुए हैं. सो आई थिंक, एंड उनकी एक छोटी बुक भी है, लिटिल बुक ऑन वैल्यूएशन, विच इज़ अ वेरी कंसाइज version of how valuation should be done. So I think there are sufficient books, and then there are courses also. I have also created a course for EY on valuation, which is aimed at students only, and a lot of students are studying that. So yeah, let's talk offline around what courses could be available. But like, and at the end of the day, it's work in progress. All right, sir. So from a student perspective, what are the general approaches of valuation जो कि एक फाइनेंस स्टूडेंट को आ जानी चाहिए, which is sufficient? Let's say DCF हो गया, multiples based approach हो गया. What's the line कि हाँ यहाँ तक एक bare minimum मुझे सीख लेनी चाहिए? सो हमारे ऑफिस में बहुत इंटर्न्स हैं, एंड हमें जो वैल्यूएशन इंटर्नशिप करते हैं हमारे साथ, तो आई ऑलवेज टेल देम दैट यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस. डू नॉट थिंक ऑफ वैल्यूएशन एज अ मैकेनिकल एक्सरसाइज कि हमने ये मॉडल डाला, ये एक्सेल डाला, ये टेम्पलेट यूज़ किया, वैल्यूएशन हो गया. बिकॉज आपके अजम्पशंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई भी टूल आपका वैल्यूएशन कर देगा किसी भी बिजनेस का. So understanding of the business and economy is very good, very important. In case of businesses, understanding of financial statements is also very important. You must be able to analyze them and see how the numbers might have to be adjusted before you do the valuation. And then the three approaches. So the cost, income, and market approach. So I think, like I said, there are sufficient materials available, and then it depends कि आप कितना डेप्थ में जाना चाहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशंस करते हैं. अगर आप वैल्यूएशन प्रोफेशन में जाएंगे तो देन आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग भी आनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट्स है, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. CFA इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा कोर्स है. द लेवल 2 हैज़ गॉट quite a lot of depth in valuation, so one could look at that. And then there are courses available. So yes. All right, sir. Moving on to the final round. Yeah. So now we have a rapid fire round where I'll give you two options and you have to choose the one which you value more in terms of goodwill, maybe perception, or maybe usefulness. Okay. You don't need to give any explanation for it, and you can't think a lot about it. Yeah. It Sure, should be. but then I might have my own biases when I'm giving those answers. Yeah, And definitely. bias is part of valuation. Of course. Yes. So the first is degree value, CA versus CFA. CA. Okay. Next is goodwill, Tata versus Amul. Tata. Bias. Okay. The next is star value, Salman Khan versus Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Okay. Next is the college perspective, DU College versus St. Xavier's College. St. Xavier's. Bias. Okay. Next is from a life perspective, do you believe in networking and connections versus your own hard skills? Networking and connections. Okay. Next is a valuation methods. So DCF versus multiple based approach. DCF. Okay. All right, sir. One final question. Let's say you have to choose a company or a brand which you think can survive without doing any advertisements or any branding exercise for the next decade. Do you think there's one such company in India? Any company in India? There would be a lot actually, right? Think of the Tata brand, the Birlas, and because I think they have created amazing ethos within themselves. We have a lot of pride in being able to work with companies like Tata's, the ITCs, the Aditya Birla Group, and so on. So I think the kind of ecosystem that they have built within their businesses is so good that they practically don't have to spend on branding as such, right? And I think every good business should be able to do that. So your brand will sustain only if you have those ethos and your systems in place. So I think a lot of them, ITC, Tatas, Birlas, All right. Ambani's, I think, yes. That's it. All our questions. Thank you so much for coming to our podcast, sir. Thank you It so was much. glad It's been to a pleasure. Yeah. Thank you. Sir, can you please ask viewers to subscribe our channel Flutebox? It would mean a lot. Sure. Yes. So I have subscribed to the Flutebox YouTube channel, and the first video was very, very good. I was glued to it, and I'm sure you will have a lot of good podcasts coming up. And I'm glad the kind of questions that you've asked. So yeah, I have subscribed, and I request you all to subscribe as well. Thank you. Thank you so much for coming, sir. Thank you so Thank